اسلام آباد میں خطے کی اہم بیٹھک، چین، ایران، روس، تاجکستان کے انٹیلیجنس چیفز کی پاکستان میں بیٹھک، ترکمانستان، قازقستان، ازبکستان کے انٹیلیجنس چیفز کی بھی شرکت۔ بیٹھک ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی میزبانی میں ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے بیٹھک میں افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ خطے میں دیر پام اور استحکام کے لیے اقدامات پر بھی گفتگو۔ خفیہ ایجنسیوں کے سربراہان کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ پر اتفاق، میکانزم تیار کر لیا گیا۔ بڑی ملاقات کی بڑی خبر سب سے پہلے ARY نیوز نے دی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں پاکستان اور عمران خان کا کردار بہت اہم ہونے جا رہا ہے۔ دنیا کو علم ہے اس خطے کا امن ساری دنیا کا امن ہے۔ پنجشیر میں پاک فوج کے ملوث ہونے کا پروپیگنڈا جھوٹ ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کا کہنا ہے خفیہ ایجنسی کے سربراہوں کی ملاقات اہم ہے۔ بھارت کا پتہ اب مکمل کٹ چکا، امریکہ سے بھی اسے جوتے پڑے۔ دفاعی تجزیہ کار اعجاز اوان نے کہا افغانستان کی صورتحال پر پڑوسیوں نے اتحاد کر لیا تو خطے سے باہر کا کوئی ملک مداخلت نہیں کر سکے گا۔ اتحادیوں سے مطالبہ ہے اٹھو شیر بنو شیر، اپنے ووٹ کی عزت کرو، بزدار کے خلاف عدم اعتماد لاؤ۔ بلاول بھٹو کا لیا میں جلسے سے خطاب، کہا نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان چاہیں تو کل حکومت گرا سکتے ہیں۔ خان صاحب کا ملک پر حکمرانی کا حق نہیں، پہلے عوام نے تخت رائے بند کا راج برداشت کیا، اب سلیکٹڈ راج بھگت رہے ہیں۔ دوست میدان چھوڑ چکے، ہمارے اتحادی نے پنجاب میں عمران کو فری ہینڈ دیا۔ پنجاب کو سازش کے تحت پیپلز پارٹی کی حکومت سے محروم رکھا گیا۔ پیپلز پارٹی کے جیالے پنجاب کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ اپوزیشن کی ایسی کی تیسی NRO نہیں دیں گے، الیکشن بھی EVM سے ہی ہوں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا دو ٹوک موقف، بولے ووٹنگ کی مہر خراب کر کے بھی الیکشن روکا جا سکتا ہے۔ نیوز کانفرنس میں منہ اور ہاتھ سے مہر خراب کر کے دکھا دی، کہا الیکشن کمیشن کا مشین میں ایلفی ڈالنے کا خدشہ مذائقہ خیز ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں الیکشن کمیشن پر اب کسی کو اعتماد نہیں، خود کچھ کرتا ہے نہ حکومت کو کرنے دیتا ہے۔ کوئی وجہ ہوگی جبھی اعظم سواتی جیسے ٹھنڈے مزاج کے آدمی نے ایسی بات کی۔ یہ EVM نہیں، الیکشن فراڈ مشین ہے۔ شفاف الیکشن کرانے کے بجائے الیکشن چوری کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ مریم اورنگزیب کی حکومت پر تنقید، کہا وزیر اعظم ہاؤس دھاندلی کا ہیڈ کوارٹرز بنا ہوا ہے۔ سوالوں کا جواب دینے کے بجائے دھمکیاں دی گئیں۔ الیکشن کمیشن کے خلاف غنڈہ گردی اور دہشت گردی کی گئی۔ ناصر شاہ نے ٹویٹ کیا، تیرے اقتدار کی کہانی بس اتنی صنم، RTS سے شروع EVM پر ختم۔ وفاق کا کراچی کے لیے بڑے منصوبوں کا اعلان، کراچی سے کچرا اٹھانے کی ذمہ داری لے لی، 11 لاکھ ٹن کچرا اٹھایا جائے گا۔ پانی کی چھوٹی اسکیموں کے لیے 21 ارب مختص، 6 سے 8 ہفتے کے اندر گرین لائن کے آپریشن کا آغاز کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم 30 ستمبر سے پہلے سرکلر ریلوے کے انفراسٹرکچر کی تعمیر کا افتتاح کریں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں مردم شماری میں 2 نمبری نہیں کرنا چاہتے، ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے مردم شماری کرائیں گے۔ علی زیدی نے کہا کراچی والے مرتضی وہاب کو نہیں مانتے، وہ بے تاج بادشاہ ہیں، 13 سال میں نالوں سے کچرا نہیں اٹھایا، اگر صفائی ہوتی رہتی تو اتنے مسائل نہ ہوتے۔ وفاق نے کے الیکٹرک کے ذریعے KMC کے ٹیکسوں کی وصولی کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ الیکٹرک کے بلوں میں کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگے گا، کہ الیکٹرک کو KMC ٹیکس وصولی کی اجازت بالکل نہیں دیں گے۔ مراد علی شاہ کا بجلی کے بلوں میں ٹیکس وصولی کے اقدام کا دفاع، کہا KMC کے 2 ٹیکس وصول نہیں ہو رہے، چاہتے ہیں بجلی کے بلوں کے ذریعے لیے جائیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ الیکٹرک PTB کے لیے ٹیکس وصول کر سکتا ہے تو KMC کے لیے کیوں نہیں۔ عمر شریف کا علاج جس ملک میں اور جیسے بھی ممکن ہو کرائیں گے، وفاقی حکومت کا اعلان۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر گورنر سندھ اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کامیڈی کنگ کی عیادت کے لیے آئے۔
इलाज में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। कहा डॉक्टर्स का बोर्ड मुआयना कर रहा है, डॉक्टर जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक अमल होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी उमर शरीफ की अयादत की और इलाज की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया। उमर शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने में मदद की अपील की थी। काबुल में तालिबान की उबूरी काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब ना हो सकी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तालिबान की उबूरी काबीना ने काम शुरू कर दिया। तालिबान वजीरों ने दफ्तर संभाल लिए। हुकूमत हलफ बर्दारी की जरूरत महसूस नहीं करती। हिज़्ब इस्लामी के अमीर गुलबदीन हिकमतियार का अफगान उबूरी हुकूमत की हिमायत का ऐलान। कहा हिज़्ब इस्लामी के कारकुन और रहनुमा उबूरी हुकूमत से ताउन करें। भारत झूठी खबरें फैलाने से बाज ना आया। अब्दुल्ला को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने का दावा। डॉक्टर अब्दुल्ला ने तरदीद कर दी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अमारत इस्लामिया के हक में ख़वातीन का मुजाहरा। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तालिबात की बड़ी तादाद इस मुजाहरे में शरीक हुई। बाहिजाब ख़वातीन का कहना था तालिबान हुकूमत की मुखालफत में निकलने वाली ख़वातीन का ताल्लुक महदूद तबके से है। अफगान वज़ारत ख़ारजा के ओहदेदार दाऊद हक्कानी कहते हैं ख़वातीन समेत किसी को भी मुजाहरा करना है तो पहले वज़ारत दाखिला से इजाज़त लेना होगी। वडेराना निज़ाम के खिलाफ उमर रुबाब की पहली कामयाबी। पीपल्स पार्टी के 2 रुकने सूबाई असम्बली तहरे कत्ल केस में मुल्जिम नामजद। दादू की अदालत ने उमर रुबाब के वालिद, चचा और दादा के कत्ल के मुकदमे में सरदार खान चांडियों और बुरहान चांडियों को नामजद कर दिया। सरदार खान चांडियों का फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। उमर रुबाब ने फैसले को पूरे पाकिस्तान के शऊर की जीत करार दे दिया। कहा फैसला इंसाफ पर मबनी है। उमर रुबाब 2018 से इंसाफ के लिए लड़ रही है। उनकी अदालत के बाहर नंगे पैर समात पर आने की वीडियो भी वायरल हुई थी। वालिद को कत्ल की इत्तला दी तो कहा घबराने की जरूरत नहीं, लाश ठिकाने लगाने के लिए बंदे आ रहे हैं। जाहिर जाफर का नूर मुकद्दम को कत्ल करने का एतराफ। DNA रिपोर्ट से ज्यादती भी साबित। पुलिस ने अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया। 12 मुल्जिमान के खिलाफ शहादत और सबूत मौजूद होने का दावा। मुल्जिम का एतराफी बयान भी चालान का हिस्सा। साइबर क्राइम विंग से लैपटॉप, फोन की रिपोर्ट आने पर ज़िमनी चालान दाखिल होगा। थेरेपी वर्क मुलाजमीन ने भी कत्ल को छुपाने और शहादत ज़ाया करने की कोशिश की। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। मेहमान टीम को कोरोना टेस्ट मंफी आने पर प्रैक्टिस की इजाजत दी जाएगी। कीवी कप्तान पाकिस्तान आमद पर खुश, कहते हैं पाकिस्तान में खेलना खुशाइन होगा। वनडे सीरीज का स्टेटस तब्दील। DRS की अदम दस्तियाबी के बायस वर्ल्ड कप सुपर लीग की बजाय 2 तरफा सीरीज शुमार की जाएगी। सीरीज के लिए ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त शुरू। 25% तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत। पहला वनडे 17 सितंबर को पिंडी में होगा। आपने टेस्ट नहीं खेला, हम IPL नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड और भारत का तनाज़ा तूल पकड़ गया। इंग्लैंड के कई खिलाड़ियों ने IPL खेलने से इनकार कर दिया। जॉनी बेयरस्टो, क्रिस वॉक्स, डेविड मिलान का भारतीय लीग खेलने से इनकार। जॉस बटलर, बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर पहले ही इंडियन लीग से दस्तबरदार हो चुके हैं। ओलंपिक हीरो तलहा तालिब और कोपैमा शहरोज काशिफ को लाखों का चूना। तलहा तालिब को विफाकी वजीर के नाम पर गाड़ी देने का झांसा दिया। नौसरबाज ने गाड़ी के टैक्स के नाम पर 3.5 लाख ऐंठ लिए। शहरोज काशिफ से गाड़ी के नाम पर 2.25 लाख रुपए बटोरे। रावलपिंडी में एडिशनल IG मोटरवे की गाड़ी पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। गुज़िश्ता रोज़ फतेह जंग इंटरचेंज पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके एडिशनल IG के भाई और अफसर को कत्ल जबकि उन्हें जख्मी कर दिया था। UN मिशन डारफोर में खिदमात सरअंजाम देते हुए पाक फौज के लांस नायक आदिल जान शहीद। ISPR के मुताबिक FC बलूचिस्तान के लांस नायक आदिल जान लकी मरवत के रिहायशी थे। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इमदादी कामों के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। UN मिशन के तहत 161 पाकिस्तानी एहलकार जानों के नजराने पेश कर चुके हैं।
ARY न्यूज़ अफगानिस्तान में भी मकबूल। कंधार में ARY न्यूज़ का कैमरा जहां गया इसे पजीराई मिली। कंधार के शहरी भी सरेआम के मेज़बान इकरारुल हसन के मद्दान निकले। कंधार में तालिबान रहनुमा नूरुल्लाह की ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर अरशद शरीफ से गुफ्तगू। बताया गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुखालिफिन पर खूंखार कुत्ते छोड़े जाते थे। पाकिस्तान का C-130 इमदादी सामान की तीसरी खेप लेकर खोस्त पहुंच गया। पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान ने कहा, इमदादी सामान में आटा, कुकिंग ऑयल और अद्वियात शामिल हैं। पाक फजाइया के तैयारे से पहले काबुल और कंदहार में भी इमदादी सामान पहुंचा चुके हैं। अब तक 36 मेट्रिक टन इमदादी सामान अफगानिस्तान पहुंच चुका है। काबुल में कायम वर्ल्ड बैंक का दफ्तर इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। पाकिस्तान के 9/11 को भी 9 बरस बीत गए। सानेहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री में 260 जाबाक अफराद के साले सबाक के लिए कुरान खानी मजदूरों की याद में शमें रोशन की गईं। तकरीब में जाबाक मजदूरों के लवाहिकीन शरीक हुए। बड़े सग़ीर के मुसलमानों को अलहदा तशख़्ख़ुस, अलग पहचान और एक आज़ाद मुल्क का तोहफ़ा देने वाले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 73वीं बरसी। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की काबीना अरकान के हमरा मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। DG रेंजर्स ने भी मज़ार क़ायद पर फूल चढ़ाए। PMDA के मुसव्विद पर इत्तेफ़ाक़ी राय पैदा करना चाहते हैं। अथॉरिटी का मकसद मीडिया की तरक्की और मौसर इंतज़ाम के लिए मरबूत नुक्ता नज़र यकीनी बनाना है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर से गुफ्तगू। 2 माह पहले अपना इस्तीफ़ा दे चुका वज़ीर आज़म ने मुझे इंतज़ार करने का कहा। उन्हें बताया था ज़ाती मसरूफियात के बायस जिम्मेदारियाँ जारी नहीं रख सकता। वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा मंजूर करेंगे तो ओहदा छोड़ दूंगा। पंजाब के सीनियर वज़ीर अलीम खान का बयान। ज़राए का कहना है अब्दुल अलीम खान उन सूबाई वज़रा में शामिल हैं जिनकी वजारत का कलमदान तब्दील होने का इम्कान है। साफ पानी करप्शन रेफरेंस शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद की जायदाद कुर्की की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक राबिया और अली इमरान के हुदैबिया इंजीनियरिंग, शरीफ पोल्ट्री, मदीना फीड समेत कई कंपनीज में करोड़ों के शेयर्स हैं। लाहौर में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। मुल्तान चुंगी सब्जी मंडी पानी में डूब गई। शहरी गंदे पानी में खरीदारी करते नजर आए। अब तक सूरत हाल पर वासा और मार्केट इंतजामिया एक दूसरे पर इल्जाम धरते रहे। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। पाकिस्तानी खातून निदा उस्मान चौधरी ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। वियना का जस्टिस शाह अवार्ड अपने नाम कर लिया। निदा उस्मान ने ख़वातीन वकला के हुकूक के लिए पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।